میرا نام ارشاد علی ہے، میں ڈسٹرکٹ نصیرآباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور یہ کمیونٹی اسکول ہے، بی ایف ورلڈ بینک نے 2007 میں یہ اسکول دور دراز رورل ایریا میں یہ اسکول دے دیے تھے۔ یہاں تعلیم کا جو نظام تھا وہ بہت کمزور ہے بلوچستان کا، آلریڈی سارے دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کا، تو ورلڈ بینک کی تعاون سے 2007 میں یہ اسکول عمل میں آئے، تو اس میں تقریباً 900 اساتذہ تشکیل دے دیے گئے، 633 کمیونٹی اسکول ہیں ہمارے۔ تو 2007 سے لے کر 2022 تک تقریباً 15 سالوں سے یہ اساتذہ ان کا ورلڈ بینک نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی 3 سال کنٹریکٹ کے بعد ہم آپ لوگوں کو مستقل کریں گے، اور ہمیں 32 لاکھ کا اسکولوں میں بلڈنگ دے دیا گیا ہے۔ تو 2007 کے بعد جب 2015 میں اس کا ورلڈ بینک کا یہ معاہدہ تھا، اس کا 2015 میں ختم ہوا تھا، ویسے 12 میں ختم ہونا تھا، تو 15 کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی ہم اب آپ کو مستقل کریں گے۔ تو 2015 سے لے کر ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی مستقلی کے بارے میں۔ اور بی ایف جو بورڈ کا ڈائریکٹر ہے، چیئرمین ہے، وہ گورنر ہے۔ گورنر نے یہ ایکٹ لگایا کہ بھئی یہ کمیونٹی اساتذہ مستقل ہوں گے، انہوں نے دعویٰ کیا، ریٹن کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کا حق بنتا ہے۔ تو گزشتہ کئی حکومت آتے جاتے ہیں، ہم نے احتجاج کیا، جیلوں میں گئے ہم، کئی بار ہم نے احتجاج بھوک ہڑتالی 40 دن کا کیمپ یہاں لگایا، وزیر آئے، منسٹر آئے، ہمیں یقین دہانی کرائی۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ 2012 میں آپ لوگ کا جو ہمارا ورلڈ بینک کا معاہدہ ہے وہ حکومت بلوچستان کے انڈر آیا، تو 2012 کے بعد آپ لوگ مستقل ہوئے، 5 سال کا پیریڈ دیا انہوں نے کہ بھئی کنٹریکٹ ورلڈ بینک کا 2012 میں ختم ہوا۔ تو اب ہمیں فنڈنگ بھی حکومت بلوچستان کر رہا ہے، گورنر کے تھرو کر رہا ہے، تو گورنر بورڈ کا چیئرمین ہے اور ایم ڈی ہے۔ ایک ہی اسکول میں تعلیم تعداد کا جو بچوں کی تعداد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمارا بہت بڑا ایریا ہے، 32 اضلاع ہیں بلوچستان میں، ظاہر ہے دور دراز علاقوں میں حکومت کی گورنمنٹ کے کم اسکول تھے، تو گورنمنٹ یہ اسکول بھی ہمارے انڈر کیے، تو اپنے انہوں نے بیمس کوڈ بھی جاری کیا ہوا ہے اسکولوں کا۔ ایک اسکول میں تقریباً 4 سے 5 ٹیچر بھی پڑھاتے ہیں، وہاں 250 تعداد ہوتا ہے۔ اس ٹائم 65,000 بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، کئی بچے تو 5ویں پاس کر کے اب کالجز میں جا چکے ہیں۔ بالکل سر، ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ جب ان کے 4 ڈیمانڈ ہیں، 4 ڈیمانڈ میں ان کا ایک ہی ڈیمانڈ پورا ہو گیا، یہ ایسا نہ ہو کہ چلے جائیں، ان کے ساتھ ہمارے ان کا جو صدر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جب ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے مستقلی، ان کا 4 ڈیمانڈ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ چلے جائیں، تو یہ ہمیں یقین ہے کہ یہ آخری دم تک ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ حکومت سے یہ مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں پرماننٹ کریں، بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے۔
मोहम्मद यूसुफ काकड़, जीवी टीचर, सदर जूनियर टीचर बलूचिस्तान। सर आज आप लोग क्यों एहतजाज करें, क्या मुतालबात है आप लोगों को थोड़ा बता दें। सर मुतालबात हमारे बहुत ईजी हैं और तस्लीम शुदा मुतालबात है और पूरे मुल्क में लागू मुतालबात हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो मुतालबा है वो अपग्रेडेशन है कि मुल्क के तमाम सूबों में हमारे जेवी मौलम कुरान जो है वो 14 स्केल में काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो है 1 स्केल में काम कर रहे हैं। और इसी तरह जेटी और अरबिक टीचर वगैरह जो है ये दीगर सूबों में जो है स्केल 16 में काम करते हैं और हमारे सूबे में जो है वो स्केल 14 में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। और इसी तरह जो है महंगाई के तनासुब से जो अलाउंसेस है, कितनी महंगाई हो गई आजकल आप खुद देख रहे हो, लेकिन हमें जो है हाउस रेंट की मद में हमें 2000 रुपये मिल रहा है या 1500 रुपये मिल रहा है, लेकिन 1500 रुपये में तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और इसी तरह हमारा एक मुतालबा है क्या नाम है कम्युनिटी टीचर का, कि कम्युनिटी टीचर को जो है वो 15 सालों से गवर्नमेंट के साथ जो है यहाँ पे फराइज अंजाम दे रहे हैं, उसको जो है मुस्तकिल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या उसकी क्वालिफिकेशन कम है? क्या उसने अपने फराइज सर अंजाम नहीं दिए हैं? और इसी तरह प्रमोशन कोटा है सर, 2006 में गवर्नमेंट ने खुद जो है हमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि भाई ये आप लोगों का हक है, जो क्वालिफाइड टीचर हैं उसको जो हम लोग प्रमोट करके जो है एसएसटी बनाएंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। तो यही हमारी मुतालिबात थी गवर्नमेंट से। आज हम आकर के यहाँ पे बैठे हैं, अगर यहाँ पे हमारा मुतालबा नहीं हुआ तो शायद हम जाकर ये सारे लोग जो है या इधरी या प्रेस क्लब के सामने हम तादा में मरकू हड़ताल पे बैठते हैं। आप लोग ये धरना कब तक जारी रहेगा और क्या इस एहतजाज से पहले आप लोगों ने सूबाई वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम या हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से मिलने की कोशिश की, अपने मुतालबात जाहिर किए? सर हमने अपनी आवाज़ यहाँ के डायरेक्टर साहब, डीओ साहब से लेकर वज़ीर आज़म तक पहुँचाया है और सबके साथ हमारे प्रूफ कापियाँ पड़ी हैं। गवर्नमेंट से हमने खुद मुलाकात किया है, इस बात किया है, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किया है, पहले वज़ीर आला साहब से मुलाकात किया था, और जो सेक्रेटरी तालीम है, जितने भी हमारे महकमे के या हमारे हुकूमत के अरकान है, उन सब के जो है हम लोगों ने ये पैगाम पहुँचाया। और पिछले साल इस पर हमने 24 दिन तादाद में मरबूक हड़ताल किया है। फिर इसी गवर्नमेंट ने हमको यकीन दहानी कराया कि भाई आप एहतजाज खत्म करो, आपका जो है मुतालबा हल हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक हल क्यों नहीं हो रहा है? हम तो इसलिए जो है निकले हैं और इंशाल्लाह हम यहीं बैठे रहेंगे। अगर नहीं तो फिर साथियों के मशवरा से हम जाकर प्रेस क्लब के ऊपर जो है हम वो वहाँ पे तादाद में मरबूक हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। रहमतुल्लाह साबिर, सूबाई जनरल सेक्रेटरी जूनियर टीचर एसोसिएशन बलूचिस्तान। क्या वजह हो गई है कि आज आप लोग यहाँ पे एहतजाजी धरना दे रहे हैं? बात यह है कि पाकिस्तान भर में जो जूनियर कैडर्स के असातिज़ा हैं वो 14 और 16 में काम कर रहे हैं। यहाँ बलूचिस्तान में बदबख्ती से जो है ये 9 और 14 में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपके सामने है कि 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे असातिज़ा काम करते हैं, कम्युनिटी स्कूल टीचर्स, आज तक उसको मुस्तकिल नहीं किया गया है। यह हमारे मेन मुतालिबात है। एक मुतालिबा हमारा 50% कोटा है जो दिसंबर 2006 में नोटिफाई हुआ है, आज तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। हालांकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, बलूचिस्तान सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला आ चुका है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला असातिज़ा के हक में आ चुका है। पिछले साल हमने एहतजाज किया, जलसे किए, मुजाहरे किए, तकरीबन 24 दिन तादाद में मरबूक हड़ताल किया हमारे सूबाई सदर और 2-3 साथियों ने। फिर सूबाई हुकूमत ने आके हमारे साथ मुज़ाकरात किए, इसको तस्लीम किए इन मुतालिबात को, मगर आज तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। जैसे अभी आप लोग का धरना कब तक जारी रहेगा और धरने से भी आप लोग मुतालबात तस्लीम के आगे क्या रहेगा? बात यह है कि हम असातिज़ा कराम हैं, हम कोई वो काम नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो। हम कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। हम अपना बात आपके तवस्सुत से, अपने जदोजहद के तवस्सुत से हुकाम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं। हम गवर्नर से मिले हैं, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, हम वजीर तालीम साहब से मिले हैं, मुलाकात किया है, सेक्रेटरी तालीम, डायरेक्टर, सबसे हमारी मुलाकातें हो चुकी है। हमने अपने फाइलें भी वहाँ तक पहुँचा दिया है। हमारा अपग्रेडेशन का फाइल वज़ीर आला के पास पड़ा हुआ है। हमें उम्मीद है कि हमें सख्त कदम उठाने से पहले मुतालिबात वो तस्लीम करें और नोटिफिकेशन करें। ये धरना कब तक जारी रहेगा? ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होते।